Hello friends, after writing the GATE examination and GATE 2017 result is also over. Now the question is that after the result has been declared, what should I do? And this is a very obvious question in the mind of the each aspirant. What should I do after the GATE result has been announced? I would like to say that there is no single answer and there cannot be a single judgment. And some people they think I should take the admission in MTech and I should pursue the postgraduate course. I should further go for the research. And the other people they think about the public sectors. Then today I would like to help after this GATE score which you have got, what are the career opportunities through the GATE score? या फिर मैं ऐसा कहूं कि गेट स्कोर को यूज करके आप कहां कहां जा सकते हैं और इस गेट स्कोर को यूज करके आप क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं. So I will tell कि GATE score can be used in the 4 different places. Number 1, you want to take admission in postgraduate course like MTech, MS or higher courses like integrated master course of MTech plus PhD. Second, you want to use this GATE score and using this GATE score you want to go in public sectors, and there are more than 200 public sectors in our country, but nearly 50 public sectors they recruit on the basis of 5 different modes every year. Out of 50, around 25 public sectors they recruit on the basis of GATE score. So GATE score card has become a benchmark. Using this you can go. And then third, after this, BARC is one organization which is a purely government of India department in the field of atomic energy, and using GATE score you can go in BARC. Fourthly, we people are less aware about that. NITI Mumbai, the college which gives the admission in postgraduate diploma in industrial engineering and postgraduate diploma in management. So these are the courses which can be available on the basis of GATE score. And the fifth, which is less common and less popular among the people, Council for Scientific and Industrial Research, CSIR, also gives you entry using the GATE score. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेरी पहली चॉइस पब्लिक सेक्टर होना चाहिए या मेरी पहली चॉइस एमटेक होना चाहिए. तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका गेट स्कोर क्या है, आपकी ब्रांच क्या है. नॉर्मली हम लोग कुछ दिनों से जो देख रहे हैं ट्रेंड पिछले कुछ सालों में, तो व्हाट द ट्रेंड वी आर ऑब्जर्विंग कि जो कोर ब्रांचेस हैं लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये स्टूडेंट्स ज्यादातर पहली प्रेफरेंस में पब्लिक सेक्टर्स प्रेफर करते हैं. बट द कंप्यूटर साइंस IT स्टूडेंट्स दे नॉर्मली हैव मोर माइंडसेट टुवर्ड द postgraduate courses from IITs and ISCs या NITs. Now we will talk about this कि आपको कौन सा स्कोर, किस स्कोर में आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है. Then in general what I would like to suggest you कि you need to explore your future aim. मतलब एक आप अपने आप पहले क्लियर हो जाइए या अपना माइंडसेट फ्रेम कर लीजिए कि आगे मुझे मास्टर्स करना है या मुझे अल्टीमेटली रिसर्च में जाना है या मेरा जॉब ही मेरी क्राइटेरिया है या मुझे जॉब ही ज्वाइन करना है. तो अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर आपकी चॉइस होगी. लेकिन पब्लिक सेक्टर्स की कट ऑफ्स को अगर हम देखें, जो लास्ट ईयर गेट 2016 की कट ऑफ है, तो इन कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जो लगभग जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. 2 से 3 नंबर का डिफरेंस आता है जनरल ओबीसी. तो जनरल और ओबीसी में अगर आपके 70 मार्क्स के अप्रॉक्स हैं या 70 से ऊपर है, देन यू विल हैव द फेयर चांसेस टू गेट द कॉल इन पब्लिक सेक्टर. और इन रैंक वाइज अगर मैं कहूं तो मैकेनिकल और सिविल में अगर आपकी रैंक टॉप 250, टॉप 300 में है या अप टू टॉप 400 है, तो जनरल और ओबीसी में आपके कॉल आने की संभावना है. ओबीसी में लगभग 100 रैंक नीचे तक भी जा सकते हैं. SC ST में तो काफी फेयर चांसेस हैं और हो सकता है कि आपकी रैंक 1000 या 2000 भी हो तो भी आपको PSU से कॉल आ जाएगा. तो गेट स्कोर की जो वेटेज है पब्लिक सेक्टर्स में लगभग वो 70 to 80% है, एंड रिमेनिंग 20 to 30% वेटेज आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा या जो ग्रुप डिस्कशन होगा उसकी होगी. तो अगर आपकी रैंक टॉप 200 या टॉप 250 में है और आप जनरल और ओबीसी में हैं, तो आप पब्लिक सेक्टर्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए. इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. और इंटरव्यू में जो आपको खास ध्यान रखना है, तो इंटरव्यू में जो PSU का इंटरव्यू है उसमें दोनों एरियाज पूछे जाते हैं. नंबर 1 टेक्निकल एरिया और नंबर 2 जो आपका पर्सनल प्रोफाइल है, एकेडमिक प्रोफाइल है, करंट अफेयर्स है या फिर हॉबी, इंटरेस्ट है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, ये भी पूछी जाती हैं. तो जब आप पब्लिक सेक्टर की प्रिपरेशन करें तो PSU प्रिपरेशन में आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में या फिर एमटेक के बारे में ना बताएं और ना ही अपना इंटरेस्ट वहां शो करिए. आपका पूरा फोकस होना चाहिए
कि आप पब्लिक सेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, गेट एग्जाम को भी आपने पीएसयू पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, और आपका जो नॉलेज लेवल है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के आसपास ही आपका केंद्रित हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर गोइंग टू फेस, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को तैयार करिए। पीएसयूज में जो करंट टॉपिक्स हैं, खास करके जब ग्रुप डिस्कशन होगा या ग्रुप टास्क होगा, तो जो कुछ करंट टॉपिक्स हैं, जैसे हम डिमोनेटाइजेशन की बात कर लें, या फिर जीएसटी की बात करें, या फिर हम जो टेररिज्म की बात करें, कुछ ऐसे टॉपिक्स, या अभी रिसेंट जो इलेक्शंस हुए हैं इनके बारे में, तो ये टॉपिक्स आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना चाहिए, और ये बर्निंग टॉपिक्स हैं, इसमें जीडी में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्रोनोलॉजिकल टॉपिक्स भी जीडी में पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल टॉपिक्स में जैसे कि आप देखें कि इंडस्ट्री इन इंडिया, या फिर ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट, या फिर ग्लोबल वार्मिंग, रिसेंटली जो पॉल्यूशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि बीएस स्टैंडर्ड 3 के जो व्हीकल्स हैं वो अब जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं नहीं बेच पाएंगी। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आपको पढ़ना है। न्यूज़पेपर के जो डेली एडिशंस हैं आप उनको देखते रहिए, न्यूज सुनते रहिए, तो दैट विल हेल्प यू लॉट। और एक जो बहुत स्टूडेंट्स ज्यादातर इग्नोर कर जाते हैं, पीएसयू के इंटरव्यू को देने जाते हैं, लेकिन इग्नोर क्या कर जाते हैं कि वो अपना जो डिग्री प्रोजेक्ट है या समर ट्रेनिंग वर्क है उसको वो इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन कई पब्लिक सेक्टर्स में डिग्री प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं, तो आपको वो भी तैयार करके जाना है कि डिग्री प्रोजेक्ट वगैरह आपका क्या था, उसका टाइटल क्या था, उसमें आपने क्या वर्क किया, उसके रिजल्ट क्या रहे। तो एक ब्रीफली आप उसको रिव्यू कर लीजिए। समर ट्रेनिंग को भी आप ब्रीफली रिव्यू कर लीजिए, और अपनी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फ्रेम करके जो आपको दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट बनाता हो वो आप फ्रेम कर लीजिए। तो दिस इज समथिंग कि पब्लिक सेक्टर इंटरव्यू में आपको क्या करना चाहिए। और पीएसयूज में जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी पूछी जाती है वो आपके टेक्निकल के बेसिक सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो बहुत कोई टफ या बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको अपने पीएसयूज मतलब जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो आपको तैयार करना है। स्टूडेंट्स एक और दिमाग में ये रखें कि अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं है तो आप सोचते होंगे कि मुझे तो पब्लिक सेक्टर नहीं मिलेगा, तो गेट के बेसिस पर नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे और सारे पब्लिक सेक्टर्स एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी कोल इंडिया लिमिटेड का हुआ, आगे इसरो का भी एग्जाम होगा। तो इस तरह के एग्जाम्स को भी आप प्रिपरेशन करके आप पीएसयूज में जा सकते हैं। गेट स्कोर को यूज करके अगर आपको एमटेक्स में जाना है, और एमटेक या मास्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 3 तरह के कोर्सेस हैं जो गेट के स्कोर के बेसिस पर मिल सकते हैं मास्टर कोर्सेज के लिए। नंबर वन इज एमटेक या एमई, जिसको आप नॉर्मली ज्यादातर आईआईटीज में, एनआईटीज में या तो एमटेक या एमई कहते हैं, तो ये है। दूसरे हैं एमटेक रिसर्च या एमएस। तो एमटेक और एमएस रिसर्च वैसे तो देखा जाए दोनों ही लगभग 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर का, और ये यूजीसी स्पॉन्सर्ड होता है, एमएचआरडी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। लेकिन डिफरेंस है, एमटेक इज ए इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स, और एमटेक में इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है तो प्लेसमेंट्स होने के बेटर चांसेस होते हैं, जबकि एमएस रिसर्च में या जो कोर्सेज हैं इस तरह के, उनमें उतने अच्छे चांसेस नहीं है, मतलब वो रिसर्च ओरिएंटेड है, एकेडमिक ओरिएंटेड है। अभी मैं देख रहा हूं कि प्रभजोत सिंह और रैंक 132 ओबीसी में लिखा है सिविल पीएसयू के चॉइसेस क्या होना चाहिए या चांसेस है कि नहीं। तो प्रभजोत, मैं बताना चाहूंगा कि रैंक 132 में अगर आप ओबीसी में हैं तो आपके फेयर चांसेस हैं, आपके ज्यादातर पब्लिक सेक्टर से कॉल आ जाएंगे और आप पीएसयूज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आईओसीएल आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एनटीपीसी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके जो महारत्ना है या नवरत्ना, उन पे ज्यादा फोकस करिए। नवनीत श्रीवास्तव लिख रहे हैं कि व्हाट आर माय चांसेस फॉर दिस सिलेक्शन। तो पब्लिक सेक्टर्स में गेट स्कोर की इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन जो गेट के बाद जो इंटरव्यू होता है, जीडी होता है, उसमें आप अपने आप को दूसरों से डिफरेंट कर सकते हैं ताकि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। आंसर आप टू द पॉइंट दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर आप जनरलिस्टिक मत दीजिए, मतलब ये मत बोलिए जो आपको आता है, बल्कि इस बात को सोचिए कि आपसे क्या पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल, देन यू नीड टू टेल द एप्लीकेशन, डोंट टेल द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली इक्वेशन। बस इन चीजों को ध्यान में रखना है। पब्लिक सेक्टर के बाद मैं अभी बात कर रहा था कि एमटेक के लिए, तो पहला तो हो गया जैसे एमटेक या एमएस, और दूसरा हो गया मास्टर कोर्सेज फॉर रिसर्च, एमटेक रिसर्च, और तीसरी की मैं जब बात कर रहा हूं वो है ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, जो एमटेक प्लस पीएचडी कंबाइंड, और जो 5 साल का प्रोग्राम होता है।
तो जनरली ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम वही स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जिनको आगे चल के या तो टीचिंग करनी है या रिसर्च करनी है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इंडस्ट्री में है या जॉब में है और आप प्लेसमेंट में जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप एमटेक को प्रेफरेंस दीजिए। एमटेक कहां से करें, किस स्कोर में कहां पर आपका एडमिशन हो सकता है, इसके लिए जो प्रीवियस ईयर के जो डेटा अवेलेबल है 2016 के गेट 2016 के बेसिस पर जो डेटा अवेलेबल है, तो उन गेट 2016 के डेटा को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरे चांसेस इस कॉलेज में बन सकते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन इस बार होने के चांस है। तो जो आईआईटीज के लास्ट ईयर के कट ऑफ्स हैं, एनआईटीज के सीसीएमटी के लास्ट ईयर के कट ऑफ्स हैं और जो पीएसयूज के कट ऑफ्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है थ्रू दी वेरियस आरटीआईज विच मेड इजी फाइल्ड, उसके जो कट ऑफ्स हैं और या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट्स में अवेलेबल हैं। तो कल तक, अर्ली मॉर्निंग कल तक या आज लेट इवनिंग तक ये सारे इंफॉर्मेशन कट ऑफ्स के जो डेटा हैं ये हम मेडिजी फोरम में या मेडिजी फेसबुक प्लस में इसको आज अपलोड कर देंगे। तो आप वहां से रीड करके आप अपने एक स्टडी कर सकते हैं कि मेरा हाँ यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस है। और आज भी तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो आप लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि आप पूछ रहे हैं कि जेटीओ के बारे में, बीएसएनएल जेटीओ मेरा अगर है तो मुझे कौन सा सर्कल लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो आपका दिमाग में है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक लाइन में तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ अपने विचार जरूर आपके साथ शेयर कर सकता हूं। बीएसएनएल में वैकेंसीज चारों ब्रांचेस के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए और कंप्यूटर साइंस के लिए। ऐसा फिलहाल क्लियर तो नहीं लिखा हुआ है कि किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज होंगी, लेकिन मेरा सोचना है कि हर ब्रांच की कट ऑफ अलग अलग जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए शायद अलग कट ऑफ होगी, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए अलग कट ऑफ हो सकती है गेट के बेसिस पर। सर्किल वाइज कट ऑफ होने की संभावना है, क्योंकि जो अभी पीछे कुछ समय पहले टीटीए के जो रिक्रूटमेंट हुए उसमें सर्किल वाइज कट ऑफ आए। तो आपका सिलेक्शन सर्किल का थोड़ा अच्छा होना चाहिए और बड़ा जुडिशियस सिलेक्शन करना है। अब सर्किल के सिलेक्शन में दो तीन बातें सामने आ जाती हैं। एक बात तो ये सामने आती है कि सर्किल वो लेना चाहिए मुझे जहां पर मुझे जॉब करना है, मेरा होम स्टेट है, मेरा होम बैकग्राउंड है, या सर्किल वो लेना चाहिए जहां पर मुझे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। तो मेरा मानना है कि सर्किल की इंपॉर्टेंस दोनों जगह है। इतनी आसानी से ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया किसी दूसरे सर्कल से और तुरंत आप अपना सर्कल चेंज करा लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। सर्कल चेंज होने में थोड़ा कठिनाई आएगी, या फिर हो सकता है प्रोबेशन पीरियड के बीच में सर्कल चेंज ना भी हो। इसलिए सर्कल का सिलेक्शन आप जुडिशियसली करिए। अगर सभी स्टूडेंट्स उस सर्कल की तरफ जाएंगे जहां पर वैकेंसीज ज्यादा हैं, जैसे गुजरात है या महाराष्ट्र है, तो मुझे लगता है कि वहां पर कंपटीशन लेवल बढ़ने लगेगा। तो आप अपने आप को अपना जजमेंट लीजिए, क्योंकि अगर मैं गाइड करूंगा कि आप गुजरात चले जाओ या महाराष्ट्र चले जाओ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां जाने लगेंगे और ये कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए मैं पर्टिकुलरली अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, हाँ, लेकिन आपको ये हिंट दे रहा हूं कि सर्किल का सिलेक्शन जुडिशियसली करिए, वहां से करिए जहां से आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पर वैकेंसीज ज्यादा हैं वहीं सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स उसी सर्कल से अप्लाई करने लगे और पता चले कि जहां पर वैकेंसीज ज्यादा थी वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। तो एक जुडिशियस सिलेक्शन आप करिए सर्कल की प्रेफरेंस पर। कुछ समय बाद, प्रोबेशन होने के बाद या आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर आप सर्कल चेंज भी करा सकते हैं। दैट इज द वन थिंग। कम बैक टू दी एमटेक। एमटेक के बारे में मैं अभी बात कर रहा था कि क्या वाकई एमटेक करना जरूरी है। क्या अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है या फिर आपकी रैंक 3000 4000 इस रेंज में है या उससे भी कम है, तो क्या वाकई एमटेक करना जरूरी है। तो मेरा मानना है कि एमटेक एक आधार है या एक दिशा है जिसके थ्रू मुझे आगे कुछ करना है, और आगे क्या करना है ये मेरा विजन आज तय हो। अगर आगे मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही जाना है, पब्लिक सेक्टर्स में ही जाना है, तो या सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तो फिर किसी नॉर्मल कॉलेज से एमटेक करना या किसी अच्छे सब्जेक्ट से, अच्छा सब्जेक्ट ना मिले और किसी सामान्य सब्जेक्ट से एमटेक करना एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन यस, अगर आपका टारगेट आगे चल के एकेडमिक्स है, रिसर्च है और आप किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो एमटेक की अहमियत है। इसलिए सिलेक्शन अगर अच्छा नहीं हुआ, गेट में रैंक अच्छा नहीं आया, एक हो सकता है 3000 रैंक, 4000 5000 या और भी कम रैंक है, तो आप चाहें
तो इस बार ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन ये इवेल्युएट कर लीजिए कि आपका बीटेक कब हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीटेक के बाद आपका गैप ज्यादा बढ़ रहा है, इंटरव्यू में 3 साल 4 साल का गैप आ गया तो आपको डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके आप अपना एमटेक का जजमेंट लीजिए। अभी जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि मैं देख रहा हूं, जैसे कि पीयूष गुप्ता पूछ रहे हैं कि नीटी मुंबई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वर्सेस एमटेक क्या बेहतर होगा। तो मेरा मानना है कि नीटी गिव्स एक्सीलेंट प्लेसमेंट्स। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, मैकेनिकल, सारे लोग जा सकते हैं। और नीति मुंबई में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें क्लास 10th की परसेंटेज, क्लास 12th की परसेंटेज, दोनों के 5-5% इंपॉर्टेंस है। देन बीटेक की परसेंटेज 10% इंपॉर्टेंस है, जीडीपीआई की इंपॉर्टेंस है, और फिर उसके बाद फिर आपके गेट स्कोर की इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपका गेट बहुत इंप्रेसिव नहीं है लेकिन एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग तरीके से आप अपना जीडी कर सकते हैं, तो नीति मुंबई में सिलेक्शन हो सकता है। नीति मुंबई में अगर आपका गेट स्कोर लगभग 700 या उसके ऊपर है सभी ब्रांचेज में, और बीटेक परसेंटेज 60% से ऊपर है, तो आप नीति मुंबई में कॉल आने के चांस हैं। सभी ब्रांचेज से लोग एक साथ जाते हैं एक ही कोर्स के लिए, और फिर वहां जीडी सेशंस होता है, इंटरव्यू सेशंस होता है। तो मैं नीति मुंबई के बारे में ये बता रहा हूं कि जो सिलेक्शंस हैं वहां से, जो कैंपस सिलेक्शंस हैं, वो बहुत अच्छे हैं। लगभग हर स्टूडेंट को जॉब मिल जाता है, और कई बार तो मल्टीपल जॉब मिल जाते हैं। आईआईटीज में जबकि हर स्टूडेंट को जॉब नहीं मिल पाता, बट एक अंतर होगा, आईआईटी से जब आप एमटेक करेंगे तो आप अपनी कोर ब्रांच से करेंगे। कोर ब्रांच से का मतलब ये हो गया कि आप, कोर ब्रांच का मतलब ये हो गया कि आप जैसे सिविल है तो स्ट्रक्चर से कर सकते हैं, या फिर जियोटेक से कर सकते हैं, या एनवायरमेंट से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई से कर सकते हैं। तो एमटेक में तो ये सुविधा है, अपनी कोर ब्रांच को परस्यू करके आप आगे जा सकते हैं। लेकिन नीति मुंबई में जो कोर्स है वो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स में सारे स्टूडेंट एक ही कोर्स में जाएंगे, और ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है, और एक तरह से ये डिप्लोमा कोर्स है 2 ईयर का। तो प्लेसमेंट अच्छे हैं, प्लेसमेंट में कोई मतलब दोहराए नहीं है। और आईआईटी के पैरेलल जो पैकेजेस हैं, या इनफैक्ट कुछ जो लोअर आईआईटीज है या नए आईआईटीज है, उनसे तो बेटर ही है। तो आप नीति को प्रेफर कर सकते हैं। एमटेक अगर हम आईआईटी से करना चाहते हैं तो आईआईटी में भी 2 तरह के कोर्सेस हैं, जिनकी रैंक अच्छी है और जिनकी टॉप 400, 500 या इवन 800 तक जनरल ओबीसी में है, एससी एसटी में टॉप 2000, 3000 तक भी है, उनको कोर कोर्सेज मिलने के चांस है। और ये जो कोर कोर्सेज होते हैं, इन कोर कोर्सेज में आपको अगर आगे पीएचडी करना है तो वो अपॉर्चुनिटीज है, प्लेसमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन जिनकी रैंक अच्छी नहीं है और आपका एक ही सपना है कि मुझे तो एमटेक करना है और वो भी आईआईटी से करना है, तो आपके लिए कुछ आईआईटीज में कुछ दूसरे तरह के भी कोर्सेज हैं, और वो कोर्सेज हैं लाइक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज। जैसे अगर आप आईआईटी दिल्ली में बात करें तो आईआईटी दिल्ली में इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज में एनर्जी स्टडीज है, अप्लाइड मैकेनिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, फिर फोटोनिक्स है, वीएलएसआई है, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्राइबोलॉजी है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी आप ले सकते हैं, जो दूसरे ब्रांच और आपकी ब्रांच के अमलगमेट होकर के बना हुआ है। इंटरडिसिप्लिनरी के कुछ कोर्सेज की तो कट ऑफ काफी कम जाती है, और लगभग 2000, 2500 रैंक तक भी आपको ये कोर्सेज मिल सकते हैं। हाँ, इस चीज को जरूर ध्यान में रखना होगा कि अगर इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स से एमटेक करते हैं तो प्लेसमेंट्स उतने अच्छे नहीं होंगे, एक्सेप्ट फ्यू, जैसे वीएलएसआई है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इनके प्लेसमेंट्स ठीक है। बाकी कुछ जो अनकन्वेंशनल है या जिनकी इंडस्ट्री में डिमांड कम है, उनके प्लेसमेंट उतने अच्छे नहीं है। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। एनआईटीज एक बहुत बड़ा सोर्स है एमटेक करने का। 26 एनआईटीज और लगभग 10 और रिप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कंबाइंड 36 कॉलेजेस के आसपास की कॉमन कंप्यूटर बेस्ड काउंसलिंग होगी। और एनआईटी की जो काउंसलिंग होगी सीसीएमटी, इसमें 4 तो ऑनलाइन राउंड होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। फर्स्ट से थर्ड राउंड तक आपकी चॉइसेस लॉक्ड होंगी और आप चॉइस चेंज नहीं कर पाएंगे। 4th राउंड में आपको चॉइस चेंज करने का अवसर मिलेगा, और उसके बाद फिर एक लास्ट में 5th राउंड जिसको स्पॉट राउंड कहते हैं वो भी होगा। तो जो स्टूडेंट 1st और 2nd राउंड में एडमिशन नहीं लेंगे, उनकी सीट्स रोटेट हो जाएंगी और नेक्स्ट राउंड के लिए चली जाएंगी। तो आप जा सकते हैं। हाँ, राजवर्धन पूछ रहे हैं, इस बीच में मैं ले रहा हूं सवाल, जस्ट पास्ड इट। सो कि I was just talking about कि what will be the
अपॉर्चुनिटी बेसिकली इन स्पॉट राउंड एन नीटी मुंबई, सॉरी इन एनआईटीज। तो एनआईटीज के जो अच्छे कॉलेजेस, त्रिची, वारंगल, सूरतकल, राउरकेला, इलाहाबाद, यहां के प्लेसमेंट्स जो नए आईआईटीज हैं, एनआईटी, आईआईटी पटना, रोपड़, मांडी या फिर इंदौर, इनके पैरेलल या इनसे बेटर हैं। तो मुझे अगर पर्सनली एडमिशन लेना हो और मुझे अगर आईआईटी मांडी में या आईआईटी पटना में या आईआईटी इंदौर में वही सब्जेक्ट मिल रहा है जो कि मुझे एनआईटी वारंगल में मिल रहा है, तो मुझे लगता है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एनआईटी वारंगल या एनआईटी त्रिची में प्रेफर करूंगा, क्योंकि वहां से कैंपस प्लेसमेंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई पुराना आईआईटी मिल रहा है, जैसे आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, या फिर आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, या फिर रुड़की और खड़गपुर, कानपुर, तो इनको मैं प्रेफर करूंगा। तो ओल्ड आईआईटी पहला चॉइस। ओल्ड आईआईटीज के बाद कुछ अच्छे एनआईटीज या नए आईआईटीज को पैरेलल ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं तो कुछ रिमेनिंग एनआईटीज, जैसे कि एनआईटी कुरुक्षेत्रा है, जालंधर है, या भोपाल है, अगरतला है, सूरत है, तो इनको भी ले सकते हैं। उसके बाद जिन लोगों का गेट क्लियर ही नहीं हुआ एंड अगर वो गेट आपको किसी वजह से दे नहीं पाए थे और अगर एमटेक करना है और अच्छे कॉलेज से करना है तो भी ऑप्शन है। जैसे अगर आप देखें तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, ट्रिपल आईटी बेंगलोर है, बिट्स पिलानी है, आईएसआई कोलकाता है, जेएनयू दिल्ली है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो साउथ कैंपस है जेके कॉलेज है। ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जो अपना सेपरेट एंट्रेंस लेते हैं, और इन सेपरेट एंट्रेंस पर अगर आप अपना टेस्ट देते हो तो हो सकता है कि आप क्वालिफाई करके और अच्छे कॉलेज से एमटेक कर लो, तो मास्टर कोर्सेज में आप जा सकते हैं। यहां में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जस्ट अ मिनट, ये अब्दुल रहमान पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट दी एपी ट्रांसको पीएसयूज। AP Transco and AP Genco, they conduct the separate written exam. They are not taking on the basis of GATE, so you can prepare, and every year there are the vacancies. Furaj Kumar asking NIT Raurkela. This is till past. Next. Yeah, Manish Chaudhary is asking about the IIT Delhi atmosphere in the science of in the science of core subjects, and as compared to the NITs. And you are asking what is the atmosphere. I think the question which has been asked is कि क्या IITs में as compared to NITs पढ़ने का माहौल, मतलब कि अगर आप फर्दर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड ऑल, व्हाट अबाउट दैट? सो इन माय ओपिनियन कि यस, एनआईटीज में उतना प्रेशर नहीं होता जितना आईआईटीज में प्रेशर होता है फॉर द सिंसियरनेस टू कंप्लीट द मास्टर कोर्सेज, एमटेक एंड योर थेसिस। तो आईआईटीज उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो लोग आगे अपना इंडस्ट्री में या एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं। लेकिन जिनको अगर आगे प्रिपरेशन करनी है और अगर आप सोचते हैं कि मुझे एमटेक इसलिए करना है कि मेरा गैप ब्रिज हो जाए और प्रिपरेशन करना है आगे इंजीनियरिंग सर्विसेज की या सिविल सर्विसेज की, तो ऐसे केसेस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे आईआईटी बीएचयू है, दैट कैन बी वन ऑप्शन, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या डीटीयू कैन बी वन ऑप्शन, या आईआईटी में कुछ ऐसे कोर्सेज ले लें जहां पे वर्क प्रेशर थोड़ा कम होता है, जो जिनकी इंडस्ट्री में डिमांड थोड़ा कम होती है, तो वो कोर्सेज ले सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट कि इट विल डिपेंड कि आपका आगे एम क्या है, उसके हिसाब से आप कॉलेज तय करिए। एमटेक के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आईआईटीज में कोर कोर्सेज के लिए आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं उनके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। कोर कोर्सेज का अलग इंटरव्यू कॉल आएगा, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज का अलग इंटरव्यू कॉल आएगा, और इंटरव्यू के दौरान वो क्या सब्जेक्ट्स पूछेंगे इसको भी आपको ये समझना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपसे वो नॉर्मली वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमने बीटेक में पढ़े होते हैं या फिर हमने गेट की प्रिपरेशन में तैयारी की हुई होती है। तो कोई भी
आईआईटी के एमटेक में जब एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस समय आप पब्लिक सेक्टर के बारे में बिल्कुल चर्चा ना करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज या सिविल सर्विसेज के बारे में बिल्कुल चर्चा ना करें, और किसी भी तरीके से ये आपके डिस्कशन में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए कि आप इसके बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड एमटेक में इंटरेस्ट शो करिए कि जिससे कॉल आया है, जिस पर्टिकुलर ब्रांच से कॉल आया है, जैसे आप मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियर है, आपका थर्मल से कॉल है, तो थर्मोडायनेमिक्स या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट, आईसी इंजन हो गया, पावर प्लांट हो गया, या फिर मे बी आरईसी हो गया, तो ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ के जाएं, थर्मल एंड एप्लीकेशन, और वही जो हमने बीटेक में पढ़ा हुआ है। और डिग्री का प्रोजेक्ट जरूर रिव्यू करके जाइए, और इंटरव्यू के दौरान आप ये रिफ्लेक्ट करिए कि सर मैंने जो गेट एग्जाम अपियर हुआ, मेरा बेसिक एम था एमटेक करना, और एमटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने तैयारी की थी गेट की। दूसरा, एमटेक अगर आपने किया तो इसका एडवांटेज क्या इंजीनियरिंग सर्विसेज के जॉब में या कहीं आगे कहीं मिलेगा? तो इंजीनियरिंग, मैं बताना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एक अलग एग्जाम है, एंड उसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है बीटेक और इक्विवेलेंट एग्जाम। अगर आपने एमटेक किया या एमटेक करने के बाद आप ईएस में जाते हैं तो कोई ऐसा एडेड एडवांटेज तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, आपका नॉलेज लेवल जरूर बढ़ता है। और कभी हो सकता है कि किसी जगह डिजाइन में आपने एमटेक किया है और डिजाइन की कोई रिक्वायरमेंट है अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाए, लेकिन इंटरव्यू में ऐसे किसी सिलेक्शन में उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। तो अगर मेन टारगेट ही है इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो आप चाहें तो एमटेक का डिसीजन उसी हिसाब से लें, ना भी करें तो चल जाएगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ एमटेक। आईआईटी दिल्ली का जब आप फॉर्म भरें तो आईआईटी दिल्ली में जरा एक और प्रिकॉशन लेना है आपको, एंड दैट प्रिकॉशन इज दैट कि जिस सब्जेक्ट में आपके चांसेस बने कि आपका यहां पर कॉल आ सकता है प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखते हुए, आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को भरिए, और जिसमें आपका चांस ही नहीं है आप उनको चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और लास्ट ईयर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ ज्यादा थी, तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिलने के चांस है ही नहीं, तो आप चाहें तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को मत भरिए। तो दूसरे आप जो भरेंगे चॉइसेस, जैसे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, तो जैसे आप इनको अगर भरते हैं और इनके चांसेस ज्यादा हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आईआईटी दिल्ली में खाली ये प्रिकॉशन लेना है कि जिस ब्रांच में आपके कॉल आने के चांस ही नहीं है, तो चाहे तो आप उसको छोड़ ही दीजिए, उसको मत भरिए। जब गेट की रैंक अच्छी होती है तो इंटरव्यू अगर एवरेज भी होगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आईआईटीज में भी एमटेक के एडमिशन के दौरान आपकी 75 to 80% वेटेज होती है गेट स्कोर की, और 20 to 25% वेटेज होती है वहां के इंटरव्यू जो होगा। जितने भी आईआईटीज हैं, आईआईटी में 3 ऐसे कॉलेजेस हैं, 2 आईआईटी और एक आईआईएससी बेंगलोर, जो 60% से कम अगर आपका बीटेक में स्कोर है तो भी आपको कॉल आ जाएगा। तो एक आईआईटी मद्रास, दूसरा आईआईटी कानपुर और तीसरा आईआईएससी बेंगलोर, ये 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां गेट स्कोर प्राइम है, और बीटेक परसेंटेज अगर 60 से कम भी है जनरल ओबीसी में, और एससी एसटी की 55 से भी कम है, तो भी आपका कॉल आ जाएगा। लेकिन जो रिमेनिंग आईआईटीज हैं और ऑल्सो एनआईटीज, तो रिमेनिंग आईआईटीज और एनआईटीज में बीटेक की रिक्वायरमेंट है 60% फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड 55% फॉर एससी एंड एसटी। तो आप इन चीजों को ध्यान में रख करके आप अप्लाई करिए, तो एमटेक के आपके इंटरव्यू अगर अच्छा करेंगे तो चांस बढ़ जाते हैं। ज्यादातर क्वेरीज में ये देख रहा हूं कि आप ज्यादातर जो पूछ रहे हैं कि रिलेटेड टू दी कट ऑफ, या फिर मेरी रैंक जैसे 1500 है, मुझे कहाँ मिल जाएगा। कुछ जैसे अनुराग पूछ रहे हैं कि मुझे पीएसयूज में जाना चाहिए या एमटेक में जाना चाहिए, और मैं इसमें लाइव क्वेश्चंस देख रहा हूं बहुत सारे। तो आप सभी के जो क्वेश्चंस के आंसर हैं, इन आंसर्स का रिप्लाई मैं एक एक करके बैठ करके और इसको पोस्ट करूंगा, और इस ज्यादातर आंसर आपके कट ऑफ से रिलेटेड हैं। तो कट ऑफ आज वेबसाइट में मेडिजी की जो मेडिजी फोरम है उसमें अपलोड कर देंगे, जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ हम लोगों के पास हैं। हाँ, डीटीयू के बारे में एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर व्हाट अबाउट द डीटीयू एंड व्हाट अबाउट द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। तो मैं बताना चाहूंगा कि डीटीयू इज better than the College of Engineering Pune in terms of the infrastructure as well as in terms of the environment for preparation of the competitive exams। तो जिनका आगे एम है कि दिल्ली में रहना है और दिल्ली में रह करके किसी इंजीनियरिंग सर्विसेज या पब्लिक सेक्टर में हम जा करके कोई प्रिपरेशन कर लेते हैं, कोचिंग कर लेते हैं, तो आई थिंक डीटीयू कैन बी प्रेफर्ड। डीटीयू की जो कट ऑफ जाती है,
डीटीयू की कट ऑफ एनआईटीज के पैरेलल होती है, जैसे कि एनआईटी भोपाल, एनआईटी कुरुक्षेत्रा, एनआईटी जालंधर, लगभग इसी लेवल पर डीटीयू की कट ऑफ आती है। तो आप मान के चलिए कि अगर आपकी स्कोर अगर 600 की रेंज में है या 600 प्लस है तो डीटीयू से कॉल आ सकता है, और डीटीयू इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शंस होते हैं। कुछ आईआईटी जैसे हैं जहां रिटन एंट्रेंस होता है कुछ कोर्सेज के लिए, और इन रिटन एंट्रेंस में अगर हम बात करें तो एक तो आईआईटी बॉम्बे, दूसरा आईआईटी कानपुर, और कुछ कोर्सेज के लिए आईआईटी रुड़की ने पिछले सालों में रिटन एग्जाम कंडक्ट किए हैं। और जब रिटन एग्जाम होता है तो ज्यादा स्टूडेंट्स को वो कॉल कर लेते हैं। तो अगर 600 से भी कम स्कोर है तो अगर रिटन एग्जाम होगा तो आपके कॉल आ सकता है। फिर आप रिटन में अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो यू कैन स्केल अप। रिटन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब पिछले सालों में जब एग्जाम हुए हैं रिटन के, तो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही हुआ है और गेट का सिलेबस ही पूछा है। और जो बिट्स पिलानी है या ट्रिपल आईटी हैदराबाद बेंगलोर हैं, तो यहां पर जो रिटन एग्जाम होते हैं तो वो इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज के लिए होते हैं। इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब कि सभी ब्रांच के स्टूडेंट एक ही कोर्स में जाएंगे, तो उनके लिए कॉमन पेपर होता है, और ये कॉमन पेपर नॉर्मली एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, तो वहां पर थोड़ा अलग होता है। लेकिन आईआईटीज में जब रिटन एग्जाम होता है तो वो टेक्निकल बेस्ड होता है। क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं कि एमटेक करना क्या वाकई जरूरी है, या एमटेक अगर हम ना करें तो और हम क्या कर सकते हैं। तो एक इसमें जजमेंटल होना बड़ा डिफिकल्ट है, और मुझे एक आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका गैप ज्यादा हो रहा है, बीटेक आपने 2012 में, 13 में, 14 में किया है, और अब आपका 3 से 5 साल तक का गैप हो रहा है, तो मैं सिंसियरली आपको एडवाइस करूंगा कि आप या तो कोई जॉब या फिर आप एमटेक ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगर 2016 में बीटेक किया है या अभी 2017 में आप फाइनल ईयर में हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। तपिस पूछ रहे हैं कि जेटीओ में जाना चाहिए या आईआईटी और एनआईटीज में जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है अगर, तो जिस लेवल पे कंपटीशन है तो मुझे लगता है कि आप बीएसएनएल में जा सकते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस है और अगर आपको आईआईटी मिल रहा है तो मुझे लगता है कि कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को तो आईआईटी से एमटेक करना चाहिए रादर देन बीएसएनएल। मतलब ये मेरी पर्सनल सोच है। बीएसएनएल में जॉब सेटिस्फेक्शन उतना अच्छा नहीं है। हाँ, जॉब इजिली मिलने के चांस इसलिए है क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, और 600-700 रैंक तक सिलेक्शन होने के चांस अच्छे हैं जनरल ओबीसी में। एससी एसटी में तो और नीचे तक रैंक तक सिलेक्शन होने के चांस है। बीएसएनएल में इंटरव्यू भी शायद नहीं होगा। पिछली बार 2009 में बीएसएनएल ने रिक्रूटमेंट किए थे तो खाली रिटन एंट्रेंस लिया था और इंटरव्यू नहीं लिया था। इस बार भी मेरे हिसाब से इंटरव्यू नहीं होगा और गेट स्कोर पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आयुष तिवारी पूछ रहे हैं प्रेफरेंस फॉर द कोर सब्जेक्ट और प्रेफरेंस फॉर द इंटरडिसिप्लिनरी। तो आयुष मैं बताना चाहूंगा कि प्रेफरेंस शुड बी फॉर द कोर सब्जेक्ट्स। वो इसलिए क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स का एप्लीकेशन अधिक है, इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट अधिक है, और आगे अगर आपको मास्टर करना है, पीएचडी करना है या आपको टीचिंग में जाना है तो जो कोर सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं वो ज्यादा आती हैं। अगर हम सब्जेक्ट्स में भी बात करें, जैसे सिविल है, सिविल में सबसे बेहतर चॉइस होगी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, और आजकल दूसरे नंबर पर आप प्रेफर कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट या कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग थर्ड नंबर पर ले सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी एक अच्छी ब्रांच है और बढ़ती हुई ब्रांच है जिसकी हमारी इंडिया में रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और वाटर रिसोर्सेज को ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम मैकेनिकल में देखें तो मैकेनिकल में मशीन डिजाइन या फिर मैकेनिकल डिजाइन जिसको कहते हैं, फॉलोड बाय थर्मल, तो थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड नंबर पर ले सकते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और लास्ट में फिर मटेरियल साइंस को प्रेफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो पहले एक समय था 2011-12 में जब लोग वीएलएसआई फर्स्ट नंबर पर प्रेफर किया करते थे, लेकिन अभी जो रिसेंट ट्रेंड है इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स काफी अच्छा कर रहा है, एम्बेडेड सिस्टम, और उसके बाद फिर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग है, और माइक्रोवेव के पैरेलल में ही आप ले सकते हैं वीएलएसआई को, और उसके बाद फिर कम्युनिकेशन के बाद फिर आप चाहें तो दूसरे सब्जेक्ट जैसे कंट्रोल एंड ऑटोमेशन है, ये सब ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही है। कंप्यूटर साइंस वालों को जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज हैं वो भी ओपन है,
तो आप माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या एम्बेडेड सिस्टम या VLSI भी ले सकते हैं, बट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फॉलोड बाय कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये सब्जेक्ट्स आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और अगर आप कोर कोर्स चाहते हैं तो कोर कोर्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स कैन बी द फर्स्ट प्रेफरेंस। उसके बाद फिर मशीन्स एंड ड्राइव्स ले सकते हैं, फिर पावर सिस्टम ले सकते हैं, फिर कंट्रोल एंड ऑटोमेशन चौथे नंबर पे ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन है तो इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को भी वो सारे कोर्सेज ओपन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हैं। इलेक्ट्रिकल वाले भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कोर्सेज में जा सकते हैं, जैसे कि VLSI है या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है या एम्बेडेड सिस्टम है, तो ये कोर्सेज भी आप जा सकते हैं। इंडस्ट्री में इन कोर्सेज की काफी इंपॉर्टेंस है और रिक्वायरमेंट है और प्लेसमेंट्स भी होते हैं। सभी IIT से 100% प्लेसमेंट हो जाए ऐसा भी नहीं है, और सभी IITs में प्लेसमेंट होते हैं ये भी जरूरी नहीं है। इवन हम अच्छे IITs की बात करें, जैसे IIT दिल्ली में या IIT कानपुर में, IIT रुड़की में, तो ऐसा नहीं है कि 100% प्लेसमेंट हो जाते हैं। 50 to 60% लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। बाकी जो बचते हैं उनमें या तो कुछ लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं प्लेसमेंट में, वो आगे रिसर्च करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, या फिर उनको अच्छी कंपनी नहीं आई इसलिए वो बैठे ही नहीं, या फिर कुछ लोगों का गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ज्यादा रुझान होता है इसलिए प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते, इसलिए वो कैंपस में नहीं बैठते हैं। तो मल्टीपल रीजन से हो सकते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रिसेंट ऑब्जर्वेशन है, एमटेक होल्डर्स के प्लेसमेंट्स बढ़ रहे हैं। पहले बीटेक के प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते थे और एमटेक के काफी नॉर्मल या एवरेज से भी कम होते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन लास्ट फ्यू ईयर्स वी आर ऑब्जर्विंग कि प्लेसमेंट्स ऑफ एमटेक आर इंक्रीजिंग। आशीष पूछ रहे हैं DRDO में कोई चांस है क्या 3000 रैंक में? तो आशीष मैं बताना चाहूंगा कि अभी तो DRDO ने अपना नोटिफिकेशन नहीं दिया, और DRDO इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड डिपार्टमेंट फॉर इंजीनियर्स। जितने भी टॉप स्कोरर्स हैं वो DRDO में प्रेफर करना चाहेंगे रादर देन अदर पब्लिक सेक्टर्स। तो DRDO की कट ऑफ ज्यादा जाएगी अगर DRDO रिक्रूट करता है, क्योंकि लास्ट ईयर गेट से रिक्रूटमेंट हुआ था DRDO का, लेकिन अभी इस बार कोई आया नहीं है। विशाल यादव पूछ रहे हैं कि 725 रैंक पे मेरे लिए क्या ऑप्शन है? तो 725 अगर आपकी रैंक है विशाल यादव की, तो मुझे ऐसा लगता है कि 725 में आपको IITs के कुछ कोर्सेज मिल जाएंगे और NITs तो जरूर ही मिल जाएंगे, और पब्लिक अगर EC है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस स्कोर में हो सकता है कि आपको अगर आप लकली होंगे तो BFNL में भी कॉल आ सकता है। 2015 में आप पास आउट हैं और आप पूछ रहे हैं आशीष कि मुझे क्या एमटेक कर लेना चाहिए, तो आई वुड लाइक टू से 2015 और 2017 ऑलरेडी हो गया, और एक साल अगर आप ड्रॉप लेंगे तो 2018 हो जाएगा, तो 3 साल का गैप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 3 साल के गैप को इंटरव्यू में डिफेंड करना थोड़ा टफ तो हो ही जाता है। तो अगर आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा हो तो आप एडमिशन ले लीजिए, और एडमिशन के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर लीजिए। कंटिन्यू अगर आप आगे प्रिपरेशन को करेंगे तो अगर अच्छी रैंक आ गई तो अगले साल PSU में आप जा सकते हैं। सौरभ कुमार पूछ रहे हैं, भारत भूषण पूछ रहे हैं कि रैंक 124 है मेरा, तो रैंक 124 या 200 या 300 या 223 इस तरह की रैंक में तो आपके फेयर चांसेस हैं। कुछ नरेश पूछ रहे हैं कि 950 रैंक मैकेनिकल PSUs, तो 950 में मैकेनिकल में PSU में जनरल में चांस मुझे नहीं लग रहा है। जनरल और में कैटेगरी में आप 300 से 400 रैंक के ऊपर कट ऑफ जाना संभव नहीं लगता। OBC में 500 के ऊपर मुझे लगता नहीं कि PSU का कॉल पॉसिबल हो पाएगा। अगर आ भी गया बाय चांस तो सिलेक्शन हो सकता है कि डिफिकल्ट हो। हाँ, SC ST में अगर ये रैंक है 1000 2000 तो डेफिनेटली देयर इज ए गुड चांस, फेयर चांस इनफैक्ट। पब्लिक सेक्टर्स की इंटरव्यू की प्रिपरेशन अगर आप दिल्ली में हैं या जहां जहां मेडीजी के सेंटर्स हैं, अगर आप वहां कोई गाइडेंस ले सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि आप अपने प्रोफाइल के कुछ अराउंड 2 से 3 पेजेस तैयार करिए, और उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं उनके आंसर अपने आप खुद तैयार करिए। टेल अबाउट योर सेल्फ, गिव योर इंट्रोडक्शन, व्हाट आर योर हॉबीज, टेल योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, tell something about your hometown, tell something about your college, why do you want to join this particular PSU, why you have not gone to MTech, and why don't you want to go for the engineering services, civil services, what is your future target, how you can contribute to our organization, what do you know about the demonetization, what do you know about the GST। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है जो करंट बेस्ड हैं या अपने पर्सनल प्रोफाइल से बेस्ड हैं, इस तरह के एक अपने सेल्फ क्वेश्चंस लिखिए और उनके 2-2 लाइन 3-3 लाइन के आंसर लिखिए, और 1-2 पेज का प्रोफाइल तैयार कर लीजिए। डिग्री प्रोजेक्ट को रिव्यू कर लीजिए, समर ट्रेनिंग वर्क को रिव्यू कर लीजिए, और सभी टेक्निकल सब्जेक्ट्स को ब्रीफली
थ्योरी में जो डेफिनेशन पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट है, उनको रिव्यू कर लीजिए। और कुछ सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर पीएसयू में ज्यादा अप्लाई होता है, जैसे आप मैकेनिकल है, आप एनटीपीसी में जा रहे हैं तो थर्मल सब्जेक्ट, अगर आप एनएचपीसी में जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग है तो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, तो ये सब्जेक्ट्स थोड़ा आप डिटेल में पढ़ लीजिए। और एप्लीकेशन बेस्ड थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे बर्नौली इक्वेशन है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो में क्या डिफरेंस है, प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ है तो हुक्स लॉ कैसे एक्सप्लेन करेंगे और हुक्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और मेडीजी की इंटरव्यू बुकलेट्स भी अवेलेबल हैं, आप नियर बाई सेंटर से परचेज कर सकते हैं। तो इंटरव्यू की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, वो भी अवेलेबल है। इस सब के अलावा जो आपके ज्यादातर माइंड में एक सवाल यह है कि अगर मुझे एमटेक में मिल गया और पब्लिक सेक्टर में भी मिल गया तो मुझे एमटेक कर लेना चाहिए या पीएसयू में जाना चाहिए। तो अगर आप सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं या इवन प्रोडक्शन के, इंस्ट्रूमेंटेशन के, तो मैं अगर आपकी जगह रहूंगा तो मैं पीएसयू में चला जाऊंगा। कुछ पब्लिक सेक्टर्स इंजीनियरिंग सर्विसेज के पैरेलल है और वो काफी अच्छा वहां एनवायरमेंट है, ग्रोथ है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। टेक्नो मैनेजरियल टाइप के वर्क हैं जहां पर आप टेक्निकल जॉब और मैनेजमेंट स्किल्स दोनों को आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए एमटेक कैन बी प्रिफर्ड ओवर पीएसयू। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी रैंक टॉप 50 में है और आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है या आईटी स्टूडेंट है या इवन इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, आपको आईआईएससी बैंगलोर या आईआईटी मुंबई या आईआईटी दिल्ली मिल रहा है और बहुत अच्छा कोर्स मिल रहा है, और इधर आपको पीएसयू में बीएफएनएल टाइप या फिर कोई एवरेज लेवल के पब्लिक सेक्टर्स मिल रहे हैं, तो अगर मैं आपकी जगह रहूंगा तो बीइंग ए कंप्यूटर साइंस और बीइंग ए आईटी स्टूडेंट मैं आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईएससी बैंगलोर चला जाऊंगा। क्योंकि जो प्लेसमेंट्स मुझे आज से 2 साल बाद वहां से मिलेंगे तो मुझे हो सकता है कि वो 20 लाख, 15 लाख से 18 लाख का पैकेज मिले, और पीएसयू में मैं हो सकता है उस लेवल पर ना पहुंच पाऊं। तो ब्रांच टू ब्रांच वेरिएशन है। इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो आपके आगे एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। आप डिफरेंट जगह फॉर्म भरिए, और एक प्रिकॉशन आपको जरूर लेना है, आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा रैंक अच्छा है तो मेरा तो आईआईटी में हो ही जाएगा। कई बार इंटरव्यू में कुछ इस तरह के मिसमैच हो जाते हैं कि आप जो कहना चाहते हैं और इंटरव्यू कमेटी को वो एक्सेप्ट नहीं करती, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना भी हो पाए। हालांकि ऐसे रेयर चांसेस होते हैं, इसलिए प्रिकॉशनरी आप कई जगह अप्लाई करिए। मेरा मानना है कि मल्टीपल जगह अप्लाई करिए। अगर आपको एक से ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं तो जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगे वो ले लीजिएगा। इसी तरह से पब्लिक सेक्टर्स में अगर कॉल आने के चांस है, रैंक अच्छी है, तो भी आप एमटेक में अप्लाई करिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आगे चल के आपका डिसीजन चेंज हो रहा है कि नहीं, आप पीएसयू में नहीं जाना, या फिर पीएसयू अच्छा नहीं मिला, या उसका लोकेशन बहुत एडवर्स आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आ गया, या फिर किसी ऐसे लोकेशन में आ गया कि जहां पर आप नहीं जाना चाहते। तो डेफिनेटली ऐसे केसेस में आपको चॉइस मिल जाएगी, तो आप एमटेक और इसके लिए दोनों के लिए अप्लाई करिए। गोपाल कुमार पूछ रहे हैं कि आई एम वर्किंग इन रेलवे एज ए सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इज देयर एनी एज रिलैक्सेशन इन ईएससी? तो गोपाल, आई वुड लाइक टू टेल यू कि हाँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर आपको अप्लाई करना है और रेलवे में अगर आपको 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं तब आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, प्रोवाइडेड यू हैव कंप्लीटेड 3 years वर्किंग इन दी रेलवेज। तो जो भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वेंचर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट पब्लिक सेक्टर्स, अगर वहां 3 साल से ज्यादा आपकी वर्किंग हो चुकी है तो जो डिपार्टमेंटल एज रिलैक्सेशन मिलती है वो आपको यहां पर मिलेगी एक्स ऑफिसर, एक्स जो एम्प्लॉय का, और वो 3 साल रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। आशीष कुमार पूछ रहे हैं कि CIL कट ऑफ अकॉर्डिंग टू यू इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होगा? तो आशीष, ये आपका सवाल जितना आसान है आंसर उतना आसान नहीं है। इस बार सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक CIL का पेपर है वो लगभग सभी लोग यही कह रहे हैं कि इजी था। इजी होने की वजह से कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना है। जनरल कैटेगरी में मेरा मानना है कि 170 से भी ऊपर कट ऑफ जाना चाहिए। ओबीसी में 160 के आसपास कट ऑफ रह सकता है, और SC ST में हाँ हो सकता है 130 135 पर सिलेक्शन हो जाए। बट दिस इज समथिंग विच आई एम टेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन भी हो। 200 में से 170 अगर आपका स्कोर आ रहा है CIL में, तब आप मान के चलिए, क्योंकि लगभग सभी स्टूडेंट्स ने CIL का एग्जाम लिखा है और जिनके गेट के अच्छे स्कोर है उन्होंने भी लिखा है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा हायर जाने के चांस है। पंकज कुमार पूछ रहे हैं 2015 पास आउट है और वो
शुड आई ज्वाइन द जॉब और दिस? तो आई विल से कि 2015 एंड दिस इज नाउ 2017, 2 years कंप्लीटेड। अगर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एमटेक कहीं ठीक ठाक कॉलेज में मिल रहा है तो एमटेक कर लीजिए, ताकि 3 साल बाद अगर आप कोई पब्लिक सेक्टर इंटरव्यू में जाएंगे या इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो आपको डिफेंड करने में आसानी होगी और आपका गैप रिफ्लेक्ट नहीं होगा। नॉर्मली 1 से 2 साल का गैप डिफेंड हो जाता है और इंटरव्यू में ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन 3-4 साल से ज्यादा का अगर गैप होता है तो कई बार फिर हम आंसर नहीं दे पाते कि इतना टाइम क्यों लग गया। तो अगर कोई जॉब बीच में ज्वाइन कर लेंगे या एमटेक ज्वाइन कर लेंगे तो वो गैप ब्रिज हो जाएगा। कुछ पूछ रहे हैं कि विच इज द एडवाइजेबल वाटर रिसोर्स और द एनआईटीज। तो आईआईटी से वाटर रिसोर्स या एनआईटी से स्ट्रक्चर, तो मैं कहूंगा कि अगर ये ओल्ड आईआईटी है तो वाटर रिसोर्स कैन बी प्रिफर्ड ओवर द स्ट्रक्चर फ्रॉम एनआईटी। लेकिन अगर ये न्यू आईआईटी है और अच्छे एनआईटी में स्ट्रक्चर मिल रहा है, न्यू आईआईटी में वाटर रिसोर्स, तो फिर मैं स्ट्रक्चर प्रेफर कर लूंगा। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। और आप जितने भी क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना छोटे क्वेश्चन पोस्ट करें, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन एक साथ फ्लड हो रहे हैं कि मुझे सारे क्वेश्चन का पूरा रीड करना भी मुश्किल हो रहा है और नया क्वेश्चन बाय द टाइम आ जाता है। तो रितेश घोष पूछ रहे हैं 2016 पास आउट सिविल इंजीनियरिंग रैंक 4000, फुड आई डू व्हाट शुड आई डू? तो 4000 रैंक है और आप 2016 या 2017 पास आउट हैं, तो इस रैंक में जनरल और ओबीसी में तो बहुत अच्छा एमटेक करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और आपको आईआईटी में भी चांस कम है और पीएसयू में तो चांस है ही नहीं। तो मेरा मानना है कि हाँ, आपका 1 साल अभी ड्रॉप है और अगर आप एंथू है, प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, तो मुझे लगता है 1 साल ब्रेक करके आपको और अच्छे रैंक से जाना चाहिए। और हर्षवर्धन सीआईएल सिविल इंजीनियरिंग कट ऑफ आप पूछ रहे हैं। कुणाल, तो कुणाल सीआईएल सिविल इंजीनियरिंग कट ऑफ मेरा मानना है 160 165 जनरल में हो सकता है कट ऑफ। और सीआईएल तो इस बार सभी पेपर इनफैक्ट इजी थे, मैकेनिकल वाले लड़के क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है तो उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा बैठे हैं। सिविल में 160 या 165 के बीच में कहीं कट ऑफ हो सकता है और होप फॉर द बेस्ट। मैं तो सोचता हूँ कि थोड़ा कम ही जाए तो अच्छा है, आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। पटेल पूछ रहे हैं नवनीत कश्यप 250 रैंक 254 रैंक इन सिविल इंजीनियरिंग एंड व्हाट आर द चांसेस इन द ओल्ड आईआईटीज? आई थिंक 254 में ओल्ड आईआईटीज आराम से मिल जाएंगे, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, क्योंकि जब से पब्लिक सेक्टर्स लेने लग गए हैं तब से लड़कों की पहली प्रेफरेंस पब्लिक सेक्टर होती है। तो जो टॉप स्कोरर्स हैं कुछ सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में, ये लोग पीएसयू की तरफ चले जाते हैं, इसलिए आईआईटीज में चांस बढ़ जाते हैं। इस बार एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, वो शायद यूजफुल होगी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स के लिए। इस बार क्योंकि बीएसएनएल की वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं, 2500 की रेंज में है, और अगर बीएसएनएल का रिजल्ट गेट की एमटेक की काउंसलिंग के पहले आ जाता है, आईआईटी की कॉल के पहले आ जाता है, तो एमटेक में काफी और मतलब नीचे रैंक तक भी एमटेक में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिनका बीएसएनएल हो जाएगा फिर वो एमटेक की काउंसलिंग में हो सकता है पार्टिसिपेट ना करें। तो ऐसा होने की संभावना है, लेकिन ये तभी बेनिफिट मिल पाएगा जब बीएसएनएल का रिजल्ट जल्दी आ जाता है और वो एमटेक के कॉल के पहले। और आप पूछ रहे हैं कि आई हैव ए स्कोर ऑफ 153 मार्क्स है, 153 मार्क्स इन सीआईएल। देखिए 153 से 160 के बीच के जो मार्क्स हैं वो एक तरह से बॉर्डर रेंज के से 160 से अगर ऊपर होता और आपका इलेक्ट्रिकल या सिविल है तो आप सिलेक्शन के बारे में आप ज्यादा होपफुल रह सकते थे। अगर जनरल है 170 के ऊपर मैकेनिकल वाले थोड़ा होपफुल ज्यादा रह सकते हैं। हाँ, उससे कम मैं थोड़ा बॉर्डर लाइंस कह सकता हूँ, 150 से 170 के बीच में थोड़ा कहना कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं कि इसमें सिलेक्शन हो ही जाएगा या फिर चांस है भी कि नहीं। धनंजय पूछ रहे हैं आईएएस कोचिंग के बारे में कि आईएएस कोचिंग मुझे कौन सी ज्वाइन करना चाहिए। तो आईएएस कोचिंग के लिए अगर आप का ये डिसीजन है कि कोचिंग ज्वाइन करना है तो मैं कहूंगा कि मेडिजी इज ए कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर क्लासरूम कोर्सेज के साथ साथ इंटरव्यू रिक्वायरमेंट है या जो आपके टेस्ट सीरीज है वो सारे कोर्सेस अच्छे होंगे। टेक्निकल और जनरल स्टडीज एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, 1100 आवर्स की टीचिंग है। तो मुझे लगता है कि अगर आप डेडिकेटेडली अगर 1 साल प्रिपरेशन करते हैं तो मेडिजी कैन मेक वंडर्स एंड यू कैन मेक वंडर्स। सो इट इज अ कंबाइंड एफर्ट विच इज नीडेड बाय यू एंड मेडिजी विच कैन बी डन इन 1 year।
रजत सौरभ पूछ रहे हैं कि 3500 रैंक में मेरे क्या चांस है। तो अगेन इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं। 3500 रैंक, 4000 रैंक, 3000 रैंक। जिन लोगों का गैप ऑलरेडी बहुत ज्यादा है उन लोगों को सोचना है मुझे एडमिशन लेना चाहिए। जो अभी फ्रेशर हैं, इफ रैंक पर पास आउट अभी हुए हैं या अभी फाइनल ईयर में हैं, मैं उनसे सजेस्ट करूंगा कि इफ रैंक में आप बहुत अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा, आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। प्रशांत, देर आर दी क्वेश्चंस पीएसयूज और आईआईटी रुड़की कि पीएसयू लेना चाहिए या आईआईटी रुड़की लेना चाहिए। अगेन मेरा विजन, मेरा एम और मेरा फ्यूचर टारगेट क्या है। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर पे जाना चाहता हूं तो पब्लिक सेक्टर्स आर इक्विवेलेंट टू द गवर्नमेंट सेक्टर और मुझे ले लेना चाहिए। अगेन अगर मेरा व्यू ये है कि आगे चल के मुझे प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, रिसर्च में जाना है, तो फिर मैं पीएसयू को छोड़ करके एमटेक करने के लिए जाऊंगा। पिछले कुछ सालों में अगर हम एमटेक के प्लेसमेंट्स पर अगर नजर डालें कि वहां प्लेसमेंट्स कितने हुए प्लस उनका पैकेज क्या है, तो जो कोर ब्रांचेस हैं जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, तो ज्यादातर इनके प्लेसमेंट्स की जो रेंज है वो है 4 लाख से लेकर के 8 लाख रुपीस या 9 लाख रुपीस पर एनम। 5-6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए पर एनम की प्लेसमेंट के एवरेज। आई एम नॉट टॉकिंग की हाईएस्ट क्या था या लोएस्ट क्या था। तो 7-8 लाख रुपए की पर एनम के पैकेज से अगर हम कंपेयर करें तो पब्लिक सेक्टर की पैकेजेस इससे ऊपर है। जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी, एनएचपीसी, बेल या बीएचईएल के जैसे प्लेसमेंट्स अगर हम देखें तो इनके प्लेसमेंट लगभग 12 लाख, 10 लाख रुपए या 13 लाख रुपए के आसपास रहते हैं टोटल पैकेजेस। तो ऑन दिस सिनारियो आई फाइंड कि पब्लिक सेक्टर्स कैन बी प्रिफर्ड ओवर द एमटेक इन द करंट सिनारियो। एंड सिविल रैंक मोर फॉर द सेम मार्क्स इन सिविल? यस। क्वेश्चन ये है कि इस बार उतने ही मार्क्स में, सिविल इंजीनियर पूछ रहे हैं कि इस बार उतने ही मार्क्स में इस बार ज्यादा रैंक क्यों आई है। तो रीजन ये है कि एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, दूसरा क्या है कि जब पेपर थोड़ा सा इजियर साइड होता है तो एक ही मार्क्स लाने वाले मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो उसका भी इफेक्ट आता है। सो देयर आर दी 2 इफेक्ट्स। एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, पेपर इजी होने की वजह से नंबर ज्यादा आ गए स्टूडेंट्स के, इसलिए ये इफेक्ट आया है। और सिलेक्शन जो एमटेक में होगा वो गेट स्कोर के बेसिस पर होगा, ना कि मार्क्स या रैंक के बेसिस पर। गेट स्कोर इज इंपॉर्टेंट। पब्लिक सेक्टर में कट ऑफ विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड सिलेक्शन इन एमटेक विल बी कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। अगर लास्ट ईयर किसी का गेट स्कोर ज्यादा था 2016 गेट और इस बार गेट स्कोर कम है, और अगर आपके पास दोनों गेट स्कोर हैं और आप एमटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि एमटेक के लिए आपका गेट स्कोर 3 साल के लिए वैलिड है, तो जो ज्यादा गेट स्कोर हो आप उसके थ्रू अप्लाई करिए, जो कम है उसको आप मेंशन ही मत करिए। लेकिन पब्लिक सेक्टर में तो सिर्फ फ्रेश गेट स्कोर चाहिए 2017 का, तो ऑब्वियसली यू हैव नो चॉइस फॉर द प्रीवियस ईयर स्कोर कार्ड। Shakid, now the question you are asking about the some same की कट ऑफ और स्कोर एंड दिस, सो आई थिंक ये सारे वही क्वेश्चन है जिसके लिए मुझे आपको पीडीएफ देना है मेडीजी फोरम या फिर मेडीजी फेसबुक प्लस प्लस, जो मेडीजी की वेबसाइट से आप एंटर करेंगे, और लेटेस्ट बाय टुमारो मॉर्निंग यू विल गेट दी सॉल्यूशन। और वहां पर आपको सारे कट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स के कैटेगरी वाइज, सीसीएमटी के कैटेगरी वाइज एंड ब्रांच वाइज एंड ऑल्सो आईआईटीज के कट ऑफ जो भी हम लोगों के पास अवेलेबल है वो आपको आज अवेलेबल करा देंगे। कुछ मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के आपको मैसेज देना चाहता हूं। वो हो सकता है कि पोस्ट गेट से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, सीएसआईआर के लिए एक सवाल पूछा है कि सीएसआईआर क्या है और सीएसआईआर में हमारा क्या एप्लीकेशन है। एक्चुअली काउंसिल फॉर साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च, देर आर 37 नेशनल लेबोरेटरीज जहां पर साइंटिस्ट सी के लिए प्लेसमेंट होता है। गेट एंड नेट में से किसी एक एग्जाम को अगर आप क्लियर कर चुके हैं तो यूजिंग गेट और नेट आप जाकर के यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड 5 साल का जूनियर रिसर्च फेलोशिप का कोर्स है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि एमटेक प्लस पीएचडी। 2 साल पहले आप एमटेक करते हैं और रिमेनिंग 3 साल पीएचडी करते हैं। लेकिन अगर आप इस 5 साल का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप साइंटिस्ट सी के लिए सीएसआईआर की लेबोरेटरीज में आपको जॉब मिल सकता है फ्रॉम कैंपस। लेकिन बात वही है कि जिन लोगों का इंडस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है, जिन लोगों को थोड़ा जल्दी जॉब चाहिए, थोड़ा ऊपर ग्रोथ करना है, उनके लिए ये जॉब नहीं है। बट जिनका इंटरेस्ट रिसर्च में है और वो भी थोड़ा नेशनल सेटअप में है, इंटरनेशनल सेटअप में है, तो फिर आप आईएससी जाइए, आईआईटी जाइए, वहां से फिर जाइए।
लेकिन नेशनल सेटअप में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ आ सकते हैं। हालांकि ज्यादा स्टूडेंट्स इसको प्रेफर नहीं करते, लेकिन फिर भी ऑप्शन तो है आपके पास, गेट के थ्रू और नेट के थ्रू आप जा सकते हैं। आई वॉज टॉकिंग आउट ऑफ द बॉक्स डिस्कशन। आउट ऑफ द बॉक्स डिस्कशन ये है कि मेरी रैंक कम क्यों आई, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या हो सकता है। क्या आप ऐसी स्टेज में हैं कि आपको इसी साल एमटेक करना कंपलसरी है, क्या किसी तरह का प्रेशर है? तो मैं मानता हूं कि ये एक साइनोसॉइडल वेव की तरह हमारा लाइफ कैरियर होता है, और वो साइनोसॉइडल ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो इससे घबराना नहीं है कि आप अपनी बॉटम में हैं। अगर आप बॉटम हैं, अपने कैरियर के बॉटम में हैं, स्कोर अच्छा नहीं आया, समय खराब चल रहा है, तो आने वाला समय आपको चेंज लाएगा ही लाएगा, ऊपर ले जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को, अपनी ड्रॉबैक्स को आइडेंटिफाई कर ले। अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं है, रैंक खराब था, एक साल की स्टडी के बाद आप अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो समय है कि आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए और आप अपनी ड्रॉबैक्स या वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करिए। किन सब्जेक्ट्स में आप वीक हैं, विच आर द एरियाज वेयर यू आर नॉट वेरी स्ट्रांग, which are the areas which you do not you are not able to attempt in the exam, or what kind of difficulties you face, what errors you make। कहीं ऐसा तो नहीं स्पीड इज ए प्रॉब्लम, एक्यूरेसी इज ए प्रॉब्लम। तो इन चीजों को कैच करिए और उसके बाद मेक द लिस्ट ऑफ ऑल दीज ड्रॉबैक्स विच हैव बिकम बैरियर इन दिस पर्टिकुलर 2017 गेट एग्जाम और ईएस एग्जाम, और सबसे पहले इनको इंप्रूव करिए। इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स यू मेक द टारगेट टाइम बाउंडेड कि आप इनको इंप्रूव करिए, और इसके बाद देन यू टेक दोज सब्जेक्ट्स विच आर ऑलरेडी स्ट्रांग। दूसरा, पढ़ाई करने का मेथड मायने रखता है। इट इज नॉट लाइक हाउ मेनी आवर्स वी स्टडी, द इंपॉर्टेंट इज दिस कि हाउ वी स्टडी। आप अगर अपनी पढ़ाई के मेथड को चेंज कर लें, अपने आप को बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ाई करें, तो हो सकता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है या लर्निंग स्किल से बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग, पढ़ते समय कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है और अपने माइंड के सेंसेस को एक्टिवेट करके पढ़ना है। हम अपने माइंड के सेंसेस को कैसे एक्टिवेट करते हैं, वो है नथिंग बट इंस्ट्रक्शंस टू स्टडी। कल हमें क्या पढ़ना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और उस टॉपिक में थ्योरी पढ़ना है, ये सवाल करना है। दिस इज व्हाट आई नीड टू थिंक टुडे इवनिंग कि व्हाट विल बी माई कोर्स ऑफ एक्शन टुमारो। तो आज आप सोचिए, कल वही करिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो पहले से अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपके सेंसेस एक्टिवेट होंगे और आप उसको ग्रास्प कर पाएंगे। जो समस्या हमारे साथ होती है ना, हम लोगों के साथ अपने टाइम में भी होती थी, आपके साथ भी है, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो ये जो समस्या है, इसको ओवरकम अगर करना है तो आप पहले से माइंड में इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, और जितने समय के लिए आपने इंस्ट्रक्शन दिया है उतने समय पढ़ो। फिर आप बीच में ड्रॉप मत करो, बीच में कोई दूसरी एक्टिविटीज मत करिए, उस समय मोबाइल फोन मत ऑन कीजिए। तो डिसिप्लिन चाहिए। दूसरा, कि जब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय उन क्वेश्चंस को मार्क करिए, सर्किल करिए जो आपसे नहीं बनते, और जो आपसे नहीं बने हैं उनके आंसर ढूंढने के लिए टेक्स्ट बुक रिफर करिए। टेक्स्ट बुक में अगर कोई पैराग्राफ मिलता है कि ये आपका डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जो सवाल में पूछा गया और आपको नहीं आता था, उसको हाईलाइट करिए, मार्क करिए। तो इस ज्यादातर आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट करने की कोशिश होनी चाहिए। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर ज्यादा होंगे तो आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। फिर इस तरह से आप जब हाईलाइट करते जाएंगे कि मुझे ये नहीं आता था, मुझे ये नहीं आता था, और ये मैंने बुक में पढ़ लिया, बुक में हाईलाइट कर लिया, तो बाद में जब रिवीजन करेंगे तो सिर्फ इन्हीं सवालों को रिवाइज करिए जो आपने सर्किल किए हैं, जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बने थे। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गए उसकी गारंटी है वो सेकंड अटेम्प्ट में भी बन जाएंगे। तो ऐसे सवालों में टाइम वेस्ट नहीं करना दूसरी बार। जो आपने बुक में मार्क कर रखा, हाईलाइट कर रखा है, उनको रिवाइज करिए। और नया सोर्स देखिए। जब टेस्ट देते हैं तो कभी भी बिना प्रिपरेशन किए हुए टेस्ट मत दीजिए। प्रिपरेशन करिए, फिर टेस्ट में अपीयर होइए, और टेस्ट के दौरान एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट को सिमुलेट करिए। मतलब जिस तरह से हम एग्जाम में अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और कंसंट्रेशन बना के रखते हैं, वैसे ही एग्जाम की तरह आप अपने सेल्फ टेस्टिंग में भी रखिए। और फिर देखिए कि आप किस चीज में लैग करते हैं। क्या ये स्पीड में है, क्या ये एक्यूरेसी में है, या फिर आप की कॉन्सेप्ट वीक है। तो ये आपको चेंज लाना है। एंड एट द एंड, जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ द स्टडी मटेरियल
जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको ध्यान में रखना है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई का थोड़ा चेंज करिए पैटर्न। लंबे स्पेल पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे स्पेल में पढ़ाई करिए। कंसंट्रेट नहीं हो पाता दिमाग, छोटे स्पेल बना करके पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर करिए। और फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस इंटर रिलेट करिए। आप मेंटली फिट तभी हो पाएंगे जब आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी। इसलिए एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक भी करिए, और एक लाइव एनवायरनमेंट में पढ़िए, एक मूविंग करते हुए पानी की तरह, जैसे रिवर का पानी फ्लो करता है और आप मूव करता रहता है और वो एयर को मिक्स करता रहता है और अपने आप को प्योर बनाए रखता है। दूसरा, जो तालाब में टैंक में पानी भरा हुआ है स्टेगनेंट, और वो पॉल्यूशन को इंक्लूड करता है। तो आपको मूविंग रखना है। आपके अंदर जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए, पेरेंट्स से डिस्कस करिए, बात करिए। तो इस तरह से आपकी वो प्रॉब्लम खत्म होगी। और जिस तरह के जो डाउट्स क्रिएट होते हैं, पढ़ते समय डाउट आ जाते हैं, तो मेडे जी फोरम में, मेडे जी फेसबुक प्लस में आकर के डाउट्स आपस में पूछिए। टीचिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। आप अपने दोस्तों को पढ़ाओ, फिर आप देखो कि आपका इंप्रूवमेंट होगा। और दूसरा, एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब आईज शुड बी ऑन द एग्जाम। एग्जाम में अगर डेरिवेशन आता है, एग्जाम में अगर फॉर्मूले पूछे जाते हैं, तो आप उसी तरीके से, अगर डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन करना है, अदरवाइज नहीं। एक और इंपॉर्टेंट, डिजिटलाइजेशन। बिट्स एंड पीसेस में जो हमारा फ्री टाइम होता है, उस टाइम को यूज करना है, तो आपको डिजिटलाइजेशन करना है या डिजिटाइजेशन करना है। क्या? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप क्लिक करके फोटो अपने मोबाइल गैलरी में स्टोर रखिए। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, रिवाइज करिए, देख लीजिए। ट्रेवलिंग में, क्लास में पहले आ गए। और एक पॉइंट, अगर आप चाहें तो माइक्रो नोट्स बना सकते हैं। माइक्रो नोट्स का मतलब है कि पूरे सब्जेक्ट को क्रिस्प छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिख करके आप एक डिजिटल डायरी बना लीजिए। आप हैंड रिटन बनाइए, फोटो लेकर के मोबाइल में डाल लीजिए। और ये वो फॉर्मूले हैं, वो वैल्यूज हैं, वो पैरामीटर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इनको जब सब फ्री टाइम मिलता है, आप ट्रेवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, आपको फ्री टाइम मिल गया, क्लास में जल्दी आ गए, आप इनको रिवाइज कर लीजिए। आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच मेक द डिफरेंस ओवर द 1 ईयर। आप बिट्स एंड पीसेस का टाइम यूज कर रहे हैं, प्लान करके पढ़ रहे हैं, माइंड के सेंसेस को एक्टिवेट करके पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन होकर के पढ़ रहे हैं, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। इसलिए आने वाले टाइम में आप अपनी स्ट्रेटेजी और मैथोडोलॉजी को चेंज करिए एंड सी दैट कि हाउ द थिंग्स चेंज, यू विल परफॉर्म मच बेटर। नाउ कमिंग ऑन टू द बैक, आईआईटी इंटरव्यू प्रिपरेशन सर प्लीज क्या होना चाहिए? जॉन पूछ रहे हैं जनन कि आईआईटी प्रिपरेशन क्या होना चाहिए। देखो, आईआईटीज के इंटरव्यू के लिए आपको टेक्निकल पढ़ना है, बेसिक फंडामेंटल पढ़ना है, कोई नई चीजें नहीं पढ़ना। जो आपने ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ी है या बीटेक में पढ़ी है या फिर गेट की प्रिपरेशन में पढ़ी है, वही पढ़िए। बट एक चीज, बीटेक प्रोजेक्ट तैयार करके जाइए। इंटरव्यू में आईआईटी की कभी भी आईईएस के बारे में या सिविल सर्विसेज के बारे में बात मत कर देना। वहां पर यही रिफ्लेक्ट करना है कि सर आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर गेट सिंपली बिकॉज आई वांटेड टू डू एमटेक। डोंट टॉक पब्लिक सेक्टर एंड डोंट टॉक अबाउट दी इंजीनियरिंग सर्विसेज। जरा भी अगर उनको लग गया इंटरव्यू के दौरान कि आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में एम है या इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ इंटरेस्ट है, तो वो आपको प्रेफरेंस नहीं देंगे, आपके ऊपर किसी और स्टूडेंट को प्रेफरेंस मिल जाएगा। राइट, सो these are the questions. Dushyant Raghav is asking about the other questions. So I think I have been talking and discussing here for the around 1 hour, and wish you all the best. Prepare, and thank you very much.